Welcome friends to my channel. My channel name is Yogesh. So as I told you in my introduction video, that I am here to teach you the subjects as you need. So today I am gonna teach you class 7 reader English first chapter, which name is 3 questions. So 3 questions in this chapter. First know about this chapter. In this chapter, this chapter written by this chapter is written by Leo Tolstoy. So I will tell about Leo Tolstoy now. So first you must know about this chapter. Okay. So this chapter is based upon the importance of the person's time management. पर्सन को अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए वो इस चैप्टर में है। इसमें एक किंग है जिसे मन में डाउट आता है कि अगर वो कोई भी 3 क्वेश्चंस अगर उसको 3 क्वेश्चंस पता होगा तो फिर वो इस दुनिया पे राज कर सकता है या फिर वो कभी नहीं हारेगा। तो फिर वही 3 क्वेश्चन की खोज करता है। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको बताऊंगा मैं लियो टॉल्स्टॉय के बारे में। तो लियो टॉल्स्टॉय के बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पे मैंने अपना सारा नोट्स रखा हुआ है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अबाउट द ऑथर है तो लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय इज ए रशियन राइटर। आई रिपीट, लियो टॉल्स्टॉय इज ए रशियन राइटर। हिज फुल नेम इज काउंट लेव निकोलोविच टॉल्स्टॉय। काउंट लेव Nikolaevich Nikoloevich Tolstoy. He is regarded as one of the greatest authors of all the time. He received multiple nominations for the Nobel Prize in literature from 1902 to 1906. His fame basically rests on for his novel War and Peace in 1869. His famous novel War and Peace was introduced in 1869. This novel made him very famous. So next novel is Anna Karenina. So next novel is Anna Karenina, which was introduced in 1871. He was born on 9 September in 1828. I repeat, he was born on 9 September 1828. He was born to a aristocratic Russian family. His first achieved literary acclaim in his 20s in sum and youth. His other works are Crimean War, Family Happiness, and this one chapter, these 3 questions. Suppose in exam comes that write some notable work, write about Leo Tolstoy. So here you have to main topic is at last you have to must write about some notable works. So if you don't know any notable works, so you can write that one of the notable works is 3 questions. This will help you very much. In exam about the author comes. It is compulsory that it will come. So at last this great author had his demise in 1910, and in 1910 he was at the age of 82. So I have told you about the author. So now theme of the story. What is the theme of the story? The theme of the story that in this story you will know the importance of a person's life, thing and time. This is very important chapter and this is very moral chapter. So now I will start the chapters. Sorry. So here before you read it is written, a king had 3 questions and he is seeking answer to them. What are the 3 questions? Does the king get what he wants? तो इसमें कह रहा है कि कोई राजा है XYZ
तो उसे एक दिमाग क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आए दिमाग में, तो वो उस क्वेश्चन को खोजने का कोशिश करता है। तो इस चैप्टर में क्या उसे उसका 3 क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, ये आप चलिए देखते हैं। The thought come to a certain king that thinks that he would never fail if he knew 3 things, and एक सर्टेन किंग है, उसके दिमाग में आया है कि अगर मेरे पास 3 क्वेश्चंस का आंसर रहता तो मैं सब चीज जान सकता, मैं कभी नहीं हारूंगा। तो क्या थे वो 3 क्वेश्चंस? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सबसे परफेक्ट टाइम क्या है किसी चीज को बिगिन करने का। सेकंड है विच पीपुल ही शुड लिसन टू, कौन से सबसे इम्पोर्टेंट पीपल कौन है उसके, एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है उसके लिए। सो द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो किंग ने अपने मैसेंजर को बोला क्या भाई आप जाइए थ्रू आउट द कंट्री और सबको मैसेज दे दीजिए कि जो भी मेरे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा, 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल ही शुड लिसन टू, एंड व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम। तो ये 3 क्वेश्चन आप यहाँ दीजिए, ये एग्जाम में आएगा आपको कि किंग के दिमाग में कौन सा 3 क्वेश्चन आया, तो ये आपको यहाँ आएगा एग्जाम में। सो आप ये 3 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो बोला अपने मैसेंजर कि भाई आप जाइए सबको बोलिए कि जो भी मेरे इस 3 क्वेश्चन का आंसर देगा उसे बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। ओके, सॉरी। तो many wise men came to the king, but they all answered his question differently. So very wise person is sagacious person, मतलब बहुत बुद्धिमान लोग आए उसके यहाँ, सब अपना तर्क दिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, लेकिन किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आप पढ़िए, आगे पढ़िए। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो था उसका क्या था? पहला क्वेश्चन व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो उसमें अलग अलग लोग जो आंसर दिए वो देखिए क्या बोले। in the reply to the first question, some said the king must prepare a time table. कुछ बोले कि किंग को टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। स्ट्रिक्टली मतलब टाइटली, और टाइम टेबल मतलब शेड्यूल, एक टाइम शेड्यूल से फॉलो करना चाहिए। So only this way they said he can do everything in this proper time. तो बोलते हैं कि अगर किंग को सबसे प्रॉपर टाइम पे करना है तो इसे यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए। तो फिर लेकिन आप जैसे बोला कि सब अलग अलग आंसर दे रहे थे, तो फिर दूसरे बोलते हैं कि अदर से that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. तो क्या हुआ? कुछ बोले कि ये इम्पॉसिबल है डिसाइड एडवांस टाइम को डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इनको सारी चीज को नोटिस करना होगा, उसको सारी चीज नोटिस करना होगा। अवॉइड फुलिश प्लेजर मतलब बेकार में जो प्लेजर रहते हैं कि जैसे किसी चीज में प्लेजर क्रिएट, जैसे अपना कोर्ट को डेकोरेट करने के लिए या फिर अपना इंटरटेनमेंट के लिए जो प्लेजर में जो अपना मनी वेस्ट करते हैं वो नहीं करना है। ये सब आंसर किंग को मिल रहे थे। तो फिर लेकिन कोई और भी आदमी थे तो और अलग अलग तर्क दिए। तो बोलते हैं क्या, Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो बोले क्या
कि किंग के पास एक काउंसिल होना चाहिए। मैन का काउंसिल मतलब एडवाइजरी, जो उनको एडवाइस दे। तो वो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा टाइम किस चीज पे करना है। फिर क्या हुआ, फिर और सारे बोलते हैं आदमी की, बट देन अदर सेड दैट देयर वाज समथिंग दैट कुड बी अर्जेंट। This thing would not wait for decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. Their king therefore would have to go to messenger. तो और क्या बोले कि कुछ चीज अर्जेंट हो सकता है, जैसे कुछ या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई अटैक हो सकता है किंग पे। तो फिर उसके लिए काउंसिल ऑफ में तो रहेंगे नहीं, तो वो बोल रहे हैं कि आपको फ्यूचर में जाना होगा। तो फ्यूचर में जाने के लिए तो मैजिशियन का जरूरी होगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, विच पीपल ही शुड लिसन टू, किन किन आदमियों की बात सुननी चाहिए। तो फिर कुछ some people say that the most necessary people to the king is where his counselors, others say the priest, few others choose the doctors, yet others say that soldiers were most necessary. कुछ पीपल बोलते हैं कि काउंसलर बहुत नेसेसरी है, कि काउंसलर किंग को मुश्किल से मुश्किल डिसीजन करने में हेल्प करता है, तो काउंसलर तो जरूरी है। लेकिन कुछ दूसरे पीपल बोलते हैं कि प्राइस मतलब भगवान को जो भगवान वर्शिप जो करते हैं वो प्राइस। तो फिर कुछ बोलते हैं कि डॉक्टर बहुत नेसेसरी है आपके लिए, डॉक्टर आपको चाहिए। नहीं तो फिर दूसरे बोलते हैं कि सोल्जर्स आपको बहुत नेसेसरी, सैनिक रक्षक, उनके राज्य के रक्षक सबसे जरूरी है। तो फिर अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। सम से साइंस, अदर चूज फाइटिंग, येट अदर से रिलीजियस वर्शिप। तो थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है किंग के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कुछ बोलते हैं कि साइंस है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको साइंस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुछ बोलते हैं कि फाइटिंग है, आप फाइटिंग पे कॉन्शियस रहिए। फिर दूसरे बोलते हैं कि रिलीजियस वर्शिप, आपको भगवान पे भरोसा करना चाहिए, आप भगवान के पास जाइए। तो क्या हुआ, तो फिर ये सारे आंसर सब डिफरेंट आंसर दे रहे थे। तो फिर डिफरेंट आंसर दे रहे थे तो किंग सेटिस्फाई नहीं हुआ। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो टीचर 50 आंसर देगा तो आप सेटिस्फाई होइएगा। आप तो चूज करने में रह जाइएगा कि कौन सा आंसर आप बोले या फिर कौन सा आंसर करेक्ट है। तो वही वैसे ही किंग का हालत था। तो वो समझ ही नहीं पाया कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत। तो किंग किसी को अवार्ड नहीं दिया, क्योंकि सब अलग अलग आंसर दे रहे थे और किसी का आंसर सही नहीं था। तो फिर किंग क्या बोला कि छोड़ो इन सबको, ये सब कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर वो छोड़ के अब चलते हैं हर्मिट के पास। हर्मिट कौन होता है, ए पर्सन हु लिव्स इन सैल्यूट, वो जो अकेला में रहता है। सेज, इसको आप अदर वर्ड में इसका मीनिंग हो गया सेज। अगर हर्मिट का मतलब पूछेगा तो आप बोल सकते हैं ए हर्मिट मीन्स ए सेज, या फिर ए पर्सन हु लिव इन सैल्यूट। सैल्यूट मतलब सैल्यूट ये वाला नहीं, SALLUT सैल्यूट, सॉरी सैल्यूटेट SALLUTETE। सो आगे बढ़ते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। He saw no one but simple people, and so King put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went alone. तो हर्मिट जो है, जैसे मैंने बोला कि वो हर्मिट हमेशा अकेले रहते हैं। तो हर्मिट फॉरेस्ट में एक जगह रहते थे, फॉरेस्ट में। वुड मतलब फॉरेस्ट ही हो गया, वुड मतलब फॉरेस्ट हो गया, समझे। तो क्या किए कि हर्मिट जो सिंपल पर्सन है वो सिर्फ ऑर्डिनरी पीपल से मिलते हैं। तो कि ऑर्डिनरी ड्रेस धारण कर लिए जो उनके प्रजा पहनते हैं। तो ऑर्डिनरी ड्रेस धारण कर लिए और चले गए हर्मिट के पास, अकेले मिले, अपने घोड़े को दे दिए बॉडीगार्ड के पास और चले गए मिलने। आगे बढ़ते हैं। As the king come near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. चलो,
जैसे ही किंग गए हर्मिट के पास, तो जैसे ही हर्मिट को उन्होंने देखा कि वो ग्राउंड डिग कर रहे हैं अपना सामने, क्योंकि घर के सामने गार्डन रहता है ना, तो वही डिगिंग कर रहे हैं वो। तो डिगिंग कर रहे, तो जैसे उन्होंने देखा तो ग्रीट किया, उन्होंने कहा कि आइए सर, आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ग्रीट किया उन्होंने। तो ग्रीट किए और फिर ग्रीट करके वो अपना डिगिंग में कंटिन्यू कर दी। देखिए कितना अच्छा नेचर था उनका, वो अपने काम पे कितने कॉन्शियस थे, ये देखिए आप। हर्मिट ओल्ड एंड वीक थे, फिर भी वो काम पे लगे हुए थे। ओल्ड एंड वीक थे हर्मिट, और जैसे जैसे काम करते जा रहे थे वो जोर जैसे सांस ले रहे थे। तो king went up to the hermit and said, I have come to you, the wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the things right at right time? Who are the people I need most? What are their prayer and the king? hermit पे क्या है कि बोला कि प्यारे हर्मिट, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया कि मुझे कुछ सहायता चाहिए, कि मुझे इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। तो वो तीनों क्वेश्चन बोलता है उनको। Hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take this spade and work in your place. तो हर्मिट क्या बोलता है कि हर्मिट देखता है कि किंग अपना क्वेश्चन पूछा, लेकिन हर्मिट को आंसर नहीं दिया। तो डिगिंग कंटिन्यू करते रहा। फिर किंग देखता है कि हर्मिट बहुत देर से काम कर रहा है, तो उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बूढ़ा भी थे, मतलब वो ओल्ड थे एज में। तो फिर वो बोलते हैं कि लाइए मुझे इस पे नीचे मैं करता हूँ। तो फिर हर्मिट बोलता है थैंक्स, गिविंग द किंग हिज स्पेड, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। जो वो किंग को अपना स्पेड दे दिए, डिगिंग टूल है, एक स्पेड एक डिगिंग टूल है, एक डिगिंग टूल, वो स्पेड दे दिए और जाके बैठ गए। When the king had dug 2 birds, he stopped and repeated his question. जब दो बेड्स जब डिग कर लेते हैं तब पूछते हैं। बेड्स मतलब फील्ड, ओके, एक रो होता है उसको फील्ड कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन। Hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand and for spade and said, now you rest, let me work. देखिए कितना अच्छे थे वो बोलते हैं कि अब छोड़ दो तुम, मुझे तो काम करने, मैं काम करता हूँ। But the king did not give a seat. मतलब वो बूढ़े तो था, किंग तो प्रजा को अपनी चिंता होती है, तो वो उसे स्पीड नहीं दिए। वो बोले कि छोड़िए, हम ही कंटिन्यू करते हैं डिगिंग को। वो डिगिंग करते रहे, 1 घंटा बीत गया। एंड देन अनदर, मतलब 2-3 घंटा बीतते गया और किंग डिग करते चले गए। द सन वेयर डाउन द ट्रीज, एट लास्ट द किंग हैड stuck the spade into the ground and said, I came to you wise man for an answer to my question. If you can give me no answer, please tell me, I will return home. Here comes someone running. तो फिर किंग डिग करते चले गए, मतलब थके। फिर लास्ट में जब सूरज डूब गया, सन डूब गया, तो फिर वो थक के बैठ गए। और फिर हर्मिट से बोलते हैं कि वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ कि मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं घर चले जाता हूँ। तो फिर हर्मिट बोलता है क्या, अरे वहां देखो, वहां से कोई दौड़ते हुए आ रहा है। ठीक, तो फिर ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। ओके, फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी टीचिंग कैसे लगी, क्योंकि मैं ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और आपको अगर मेरा टीचिंग स्किल अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जरूर उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा। और आज का आपका होमवर्क रहा कि आपको ये कॉम्प्रिहेंशन चेक
करके लाना है। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1 के बाद यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसे आपको करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, चलिए आप उसे कर लीजिएगा। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और मैं फिर से आऊँगा अगले पार्ट में। सो थैंक यू।